حضرات، جیسا کہ آپ ابھی سن رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کے اس مدرسہ تعلیمات اسلام کے طلباء نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی محنتیں اور بڑی کاوشیں اور بڑی مشقتیں برداشت کی، اور ان کا ساتھ گاؤں کے سارے لوگوں نے دیا ہے اور اس جلسے کو کامیاب بنایا ہے۔ دراصل یہ جو کچھ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، حتیٰ کہ اس جلسے میں بولنے والے، واضح بیان کرنے والے، نظامت کرنے والے، نعتیں پڑھنے والے، اور اس سے پہلے بہت سے طلباء نے آپ حضرات کے سامنے بہت کچھ سنایا۔ یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے بانی مدرسہ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب نور اللہ مرکزہ کا اور ان کے شاگرد الحاج حضرت مولانا محمد یونس صاحب، اور ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے تو دونوں ہی استاد ہیں اور ہم دونوں کے شاگرد ہیں۔ سب سے پہلے تو ہزار بار اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کی یہ محنت اور ان کی قربانی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آپ نے ابھی سنا کہ جو ہے بڑی محنتیں کی گئیں اور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تمام لوگوں نے تعاون کیا۔ بہت سے اطراف کے لوگ بھی ہمارے اس جلسے کے اندر شرکت کر رہے ہیں، جو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ بھائی اس جلسے میں ہم جو علماء کے بیانات سنیں، ان کی واضح نصیحت سنیں، اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ اگر ابھی تک ہم نے نیت نہ کی ہو، حالانکہ النیت ای قصد العبادت للہ تعالی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم اپنے گھر سے نکلے تھے جلسہ سننے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے تذکرے کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو ہماری نیت تو پہلے سے دین کی بات سننے کی ہے، مگر از سر نو پھر سے ہم اس بات کو ذرا سا اپنے دماغ کے اندر، دل کے اوپر ذرا سا از سر نو پھر سے دوہرا لیں کہ انشاءاللہ آج ہم اس جلسے سے خالی نہیں جائیں گے بلکہ کچھ لے کر کے اٹھیں گے۔ آج ہم اس بات کا عزم کریں گے کہ انشاءاللہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ میں شعر سناتا ہوں آپ حضرات کو۔ علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، اور توفیق مشقت سے بھی حصہ دے دے، پھر ہو ساران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر ہو ساران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا یہاں کا بیٹھنا رائے گاں اور بیکار نہ ہو۔ ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم کچھ سیکھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر چاہے جتنا بڑا کوئی عقل مند ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، دانشور ہو جائے، مگر ساری زندگی اگر وہ نبی کا دین سیکھتا رہے تو ساری زندگی وہ دین سیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کو تو سیکھتے ہی رہنا ہے، ہمیشہ
सीखते ही रहना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उलमा और तलबा की कितनी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा दीन के वारिस है, नबियों के वारिस है। नबी माल दौलत और जायदाद नहीं छोड़ते, वो तो दीन छोड़ करके जाते हैं। और उसका वारिस कौन बनता है? उलमा बनते हैं। शुरू से लेकर कयामत तक के इस दीन की हिफाजत करने की जिम्मेदारी उलमा की है। तमाम की तमाम कुर्बानियां उलमा की है, तलबा की है, हुफ्फाज की है, कुर्रा की है। अभी जनाब नाज़िर साहब बयान कर रहे थे कि बच्चे की पैदाइश से लेकर के और मौत तक के आने वाले तमाम मराहिल में उलमा से संपर्क किया जाए, उलमा से मिला जाए और उनसे एक एक बात पूछ करके अमल की जाए। लेकिन मेरे अजीज साथियों, यहाँ पर हम आपसे एक शिकायत करेंगे कि हमारे अंदर कमियां हैं। आज हमने उलमा से अपना ताल्लुक छोड़ रखा है। हम उलमा की जरूरत नहीं समझते दीनी मामलात के अंदर, तो हम करते हैं। बच्चा पैदा होगा तो अजान के वक्त के लिए, अजान के लिए हम याद करेंगे और तकबीर के लिए याद करेंगे। कोई मौका ऐसा आएगा दीन का तो हम उलमा को याद करते हैं। मगर कोई दुनियावी काम होता है, कोई दुनियावी मामला होता है, हम उसमें उलमा को याद नहीं करते, उसमें हम अपनी अकल का दखल करते हैं। लेकिन मेरे अजीज साथियों, हमें कोई भी अमल करना हो तो उससे पहले दीन के जानने वालों से मिले, उनसे पूछे कोई भी अमल होगा वो सही है या गलत, जायज है या नाजायज, हराम है कि जायज, कुछ भी हो उसको पहले हमें पूछना चाहिए और उसके बाद उस पर अमल करना चाहिए। इसलिए कि तस्दीक है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इस दीन के तहफ्फुज़ के लिए उलमा ने कुर्बानी दी है और नबी के वारिस भी उलमा है। और आज तक नहीं बल्कि कयामत तक विरासत उलमा की ही जिम्मेदारी में रहेगी। तुम्हारा कोई भी मसला हो तुम्हें उलमा से जो है मिलना पड़ेगा और उससे जो है वो बात मालूम करनी पड़ेगी। और मैं उलमा से भी ये बात कहना चाहूंगा, वो कोई भी हो, हम हो या हमारे अतराफ के उलमा या दुनिया के अंदर कोई भी आलिम हो, उलमा को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। आज इस माहौल के अंदर हक बोलने वाला कोई मिलता नहीं है। हक बोलना बड़ा मुश्किल हो गया, सच बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने फरमाया था, अगर जाहिल चुप रहे और उलमा हक बोलने लगे तो दुनिया की तमाम उलझनें खत्म हो सकती है। इसलिए मेरा ये साथियों, इल्म तो इतना जरूरी है कि बगैर सीखे चारा नहीं है। इल्म की मैं मिसाल दूं आपको, जिस तरीके से इंसान के जिस्म में अहमियत रूह की होती है, जिस दिन इंसानी जिस्म से रूह निकल जाती है तो इंसान का जिस्म मुर्दा हो जाता है, फिर उसका हाथ पांव कुछ भी नहीं चलता। ऐसे ही अगर इल्म से हम कोरे हैं तो मिस्ल मुर्दा के हैं, मिस्ल मुर्दा के हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इल्म कितना जरूरी है। अगर हमारे अंदर इल्म नहीं है तो हम 2 रकात नमाज भी सही नहीं पढ़ सकते। हमारे कपड़े पे लगी हुई नजाकत हमें तरीका नहीं मालूम है इसके पाक करने का। आज मेरे अजीज साथियों, ऐसा माहौल हो गया है कि जो है, मैं मिसाल देता हूं कि कपड़े के ऊपर नजाकत लगी हुई है तो नजाकत को कभी धुला जाता है, कभी रगड़ने की जरूरत होती है तो रगड़ना पड़ता है। उसको खत्म करने के लिए कई हरबे इस्तेमाल होते हैं। आज उम्मत के अंदर इतनी गुमराही हो चुकी है, इतना फसाद फैला हुआ है, लोग ईमान से, लोग इस्लाम से कोसों दूर हो गए हैं। आज उम्मत को भी रगड़ने की जरूरत है, आज बहुत कुछ साथ साथ बताने की जरूरत है। मेरे अजीज साथियों, मैं एक हदीस सुनाऊं आपको इल्म की निस्बत से। ये तो जलसा, ये हमारा जो इश्तिहार आप हजरात ने देखे होंगे उसका नाम है इस्लाहे मुआशरा, लेकिन इसका ताल्लुक है मदरसा तालीमात इस्लाम से, जहां उलमा ने और तलबा ने बड़ी मेहनतों के साथ इसको कामयाब बनाया है। इसलिए इल्म और दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, आप कोई भी अमल, कोई भी चीज को उठा करके देखेंगे, ताल्लुक इस्लाहे माशरा से है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद भी
दुनिया के अंदर इंसानों की गुलामी से, इंसानों की गुलामी से हटाकर अल्लाह की गुलामी की तरफ लाना था, उसी की इस्लाह करना है। आज हमारे लिए जरूरत है इस्लाह की, इनकलाबात की, तमाम तब्दीलियों की जरूरत है। इतने मुंजमिद हम हो गए हैं कि हम सुनते तो बहुत कुछ है मगर अमल करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज हमारी हालत क्या हो गई है। आज कुफ्र हमारे ऊपर हंस रहा है, बातिल ताकतें हमें झिझोड़ रही है अतराफ के, और हमारे सामने ऐसे ऐसे वाकयात आते हैं, ऐसे हालात आते हैं, ऐसे हादिसात आते हैं, हमें झिझोड़ते हैं, हमें बेदार करने की कोशिश करते हैं, मगर हम ऐसी नींद सोए हुए हैं कि हम जागने का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए मेरे अजीज साथियों, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। एक बार हजरत कसीर इब्ने कैस रहमतुल्लाह अलैह के ताबई है, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, उनके साथ दमिश्क की मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे। एक इत्तेफाकन एक साहब आए और उन्होंने कहा, अरे सहाबी रसूल, अरे गुलाम मुस्तफा, मैं आपके पास किसी खास गरज से नहीं आया, बल्कि मैं आपसे सिर्फ एक बात सुनने के लिए आया हूं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, मा जाका फमा जा बिका तिजारत, क्या तुम कोई तिजारत की गरज लेकर के आए हो? उसने कहा, काला ला, मैं किसी तिजारत की गरज से नहीं आया हूं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जरा सा और उसको खंगाला, पूछते हैं मकसद क्या है आने का? फरमाया, वला जा बिका गैरू, हाँ तुम तिजारत की गरज से नहीं, कोई और गरज से आए हो ना? उसने कहा, नहीं, मैं किसी गरज से नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ आपसे वो बात सुनने के लिए आया हूं जो आप जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबाने मुबारक से सुनी है और उसको आप बयान करते हैं। हम वही बात आपसे सुनने के लिए आए हैं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अच्छा तुम बात सुनने के लिए आए हो, मैं आपको सुनाता हूं। फरमाया, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मा सहलल्लाहु तरीकन फिल जन्नह। सुनो, जो अल्लाह के रास्ते में, यानी जो एक हदीस का टुकड़ा सुनने के लिए, जो एक कुरान की आयत को सुनने के लिए, जो एक मसले को मालूम करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलता है, यानी दीन हासिल करने के लिए निकलता है, कुरान सीखने के लिए निकलता है, इल्म सीखने के लिए निकलता है, तो क्या होता है, वो जो है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला एक जन्नत का रास्ता खोल देते हैं। वो सिर्फ हदीस का टुकड़ा नहीं, वो सिर्फ एक मसला मालूम करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस चलक फिरक को, उसके इस जज्बे को और उसके सीखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का रास्ता उसके लिए खोल देते हैं।